Yes, Sunil, you want to say something? I'm audible. Yes, Sunil. Yes, audible. Yes. Yeah, that's fine. Anil has actually raised a hand. That's why I want to ask to Anil. Alright, yeah. Alright, very good afternoon, all. Firstly, just a little bit about myself. My name is actually Jaspreet, and if I'm talking about who am I, what is my professional background, then I am currently working as a guest faculty at Police University as well as a PhD scholar at CSC department in IIT Jodhpur. Okay, I'm a researcher, blogger, faculty consultant. If you want a doubt in any domain, specifically if I'm talking about in cyber security domain, then you can talk to me. You can contact me on my social network, on my email ID as well. Okay, if I'm talking about broadly my research area, because when I'm talking about my research area, in which specifically in which cybersecurity topic I want to do my research, then blockchain, network security, and I want to say that mobile application security is my research area nowadays, right? But I'm open to all cybersecurity research area. Don't worry about it. But if whenever you want any discussion in the cybersecurity field in any topic, you can ask to me. You can contact to me, right? This a little bit about myself, because firstly you should know about that who I am. Then actually we will communicate, right? We will communicate and we will easily communicate your lectures. I easily communicate your talk, easily communicate your lecture, whatever I wanna teach you, right? So firstly you should know about basic things of me, who I am right now. Alright, I think my screen is visible, my presentation is visible, right? I think so. Yes, ma'am. Alright. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alright. One more thing I wanna ask to you all. Uh, what you want means all lectures you should want in a bilingual language or English language. If everyone is comfortable in English, then I will go all lectures in totally English. Or if many of the students wants to bilingual language, then I will go to the bilingual one as well. Right? What you guys are prefer? It's totally depend on you, because my main task is to understand the topic, right? You should learn something, right? Language should not be a barrier, first of all, right? Definitely I'm not going to a Hindi one, because it's difficult for me as well, right? So you have only two options, either totally English or either bilingual one. You have only two options. Then firstly let me know in which language I will continue. Alright, Ronak is asked English. Everyone is comfortable in English, guys. You just poll for yourself, right? You just poll for yourself, right? Yeah. Yes, Fateh. Hello, ma'am. Yes, Amit. मैम कुछ स्टूडेंट्स है जो कि इंग्लिश इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो इसलिए वो हिंदी में ही प्रेफर करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगी नहीं, वैसे तो। एक्चुअली डेफिनेटली इफ यू टॉक अबाउट हिंदी, तो व्हेनेवर ऑब्वियसली जब मैं डेफिनेटली जब हम टेक्नोलॉजिकल वर्ड में आ जाते हैं, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल वर्ड ऑब्वियस इंग्लिश में रहेंगे। डेफिनेटली मैं उसकी हिंदी कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी, राइट? बट डेफिनेटली बायलिंगुअल इज द प्रेफरेबल वन, ऑलराइट? Everyone is comfortable in bilingual one. यस यस मैम, यस All right, Fateh, you want to say मैम, यस something? मैम। All right. I think I will continue with bilingual one. Any no one has मैडम problem. कुछ हिंदी हिंदी में मैडम हिंदी में भी पढ़ाना है मैडम कुछ। All right, that's fine. But if I'm talking about bilingual one means Hindi plus English. No doubt technical words should be in English. मैं उसको communicate करूँगी हिंदी में, उसका means क्या होता है. But definitely, it's a bilingual means combination of both the language.
right? All right, guys. All right. Fateh, you just mute yourself because Fateh, you just mute yourself. All right, yeah. Uh, so start. If I'm talking, just a second. I have to just. All right. When I'm talking about what's your topic, what is this actually your subject title? The subject title is actually just yeah. Your subject title is actually fundamental computer science, right? It means that you should know about it. What is a computer science? Fundamental means basics of computer science, right? What are the basic of, what do you mean by computer, why we use a computer technology, what are the basic terminology, what are the basic terms we have used in a computer, how actually computer works, right? Basically we should talk about these things, right? That's why if I'm looking at your syllabus, right, fundamental computer science, they are actually a 4 unit, right? In first unit, we should know about that what are the data structure, right? How we use a data structure. In second topic, if I want to say, in second unit we have a database management system. In third unit we have a algorithm, then operating system. Actually, firstly you should know about it why this type of structure is designed, right? Because when I'm talking about subject, डेफिनेटली अगर मुझे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, राइट, अगर मुझे कोई भी सब्जेक्ट लर्न करना है, इट मीन्स दैट वो सब्जेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, या व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे कोई भी सब्जेक्ट लर्न करना है, इट मीन्स दैट उस सब्जेक्ट की जितनी भी यूनिट्स होती हैं ना, वो प्रॉपरली डिफाइन की जाती है, इट्स अ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सिलेबस, राइट? तो डेफिनेटली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वी हैव टू लर्न द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट मीन्स दैट उस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, वट एवर वी वॉन्ट टू लर्न, उनकी हर यूनिट है, हर यूनिट में कुछ कुछ टॉपिक्स है। जैसे फर्स्ट यूनिट हम टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर है, देन सेकंड यूनिट DBMS है, देन थर्ड एल्गोरिथम्स है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाई दिस आर डिजाइन एज मच मीन्स ऑब्वियसली जब भी हम कोई सिलेबस डिज़ाइन करते हैं तो उसका कुछ पर्पस होता है, राइट? बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, देन कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स टर्मिनोलॉजी में क्या आता है, कंप्यूटर साइंस के बेसिक थिंग्स में क्या आता है, दोज थिंग्स आर एक्चुअली इंसर्टेड इन योर सब्जेक्ट, राइट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस, देन फर्स्ट थिंग क्या माइंड में आती है, व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर? कंप्यूटर मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, right now in any electronic device. I'm talking about my computer, okay? If I'm talking about my PC, my laptop is a computer device, right? My mobile phone is also a computer device. If I'm talking about smart TV, स्मार्ट टीवी भी आजकल कंप्यूटर डिवाइस में आता है. इफ एम टॉकिंग अबाउट माय फिटबैंड, माय स्मार्ट वॉच, वो भी आपके कंप्यूटर डिवाइस में है, राइट? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट fundamental things, fundamental for computer science, fundamental for computer devices, then we should know about that. What do you mean by that, right? That's why it's same structure follow up हो रहा है, okay? When I'm talking about computer device, when I'm talking about computer science, right? When I'm talking about computer science, computer, when when I want to talk about computer, computer is by default automation, right? Because when I'm talking about I want to use a mobile phone, I want to use any electronic device, when I want to say that I want to use my laptop, right? My smartwatch, it means that is something we need in automation, right? हम कुछ automation में चाहते हैं, कुछ electronic device में intelligence डालना चाहते हैं, right? Because we already know about it, we have a electronic devices. Our mobile phone is a one electronic device, our laptop is a one electronic device. When I'm talking about electronic device means those devices जिसमें with the help of those devices, just a second, why this is again comes up, yeah. When I'm talking about electronic devices, electronic device means those devices which is basically used in a computer world, which actually needs the automation, right? Because when I'm talking about uh, लैपटॉप, ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लैपटॉप है आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, डेफिनेटली आपका मोबाइल फ़ोन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर मीन्स वो पोर्शन जो आपका किसी मटेरियल से बना हुआ है, राइट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरा मोबाइल फ़ोन है, राइट, मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, या फिर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ उसमें आयरन मटेरियल है, दे आर मटेरियल्स, विद द हेल्प ऑफ दैट मटेरियल्स वो मेरा मोबाइल फ़ोन की हार्डवेयर बना हुआ है. हार्डवेयर मीन्स दैट थिंग जिसको हम
हम टच कर सकते हैं, राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई लैपटॉप, तो मेरे लैपटॉप में वायर्स है, राइट। मेरे लैपटॉप में वायर्स भी है, मेरे लैपटॉप में चिप्स हैं, दोस्त मेरे लैपटॉप में फैन भी लगा हुआ है, मेरे लैपटॉप में चार्जिंग केबल भी लगी हुई है, राइट। तो दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड द हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स वो मैटेरियल, जब कोई फिजिकल मैटेरियल से कोई चीज़ बनी होती है, राइट। फिजिकल मैटेरियल से जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परफॉर्म करते हैं, दोज आर कॉल्ड द हार्डवेयर। हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, राइट। मैं अपने लैपटॉप को टच कर सकती हूँ, फिजिकली टच कर सकती हूँ, दैट्स कॉल्ड द हार्डवेयर। मैं अपने मोबाइल फ़ोन को फिजिकली टच कर सकती हूँ, दैट्स द हार्डवेयर, राइट। बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाने का मीन्स क्या है, डेफिनेटली मैं एम टॉकिंग अबाउट मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, इट मीन्स दैट कि मुझे ऑटोमेशन में जाना है। यानी कि मुझे जो भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे थे, जो भी हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वर्क कर रहे थे, उसको हमें ऑटोमेट करना है, राइट। बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इज ऑल्सो कंप्यूटर डिवाइस, राइट। क्योंकि नाउ इज कैलकुलेटर भी बहुत एडवांस हो गया है, तो कंप्यूटर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इज ऑल्सो just a second, anyone wants to come in? Yeah. If I'm talking about calculator, calculator is again, yeah, calculator is again an electronic device, right? Because when I'm talking about electronic device, when I'm talking about we have to move into computer science, it means that जो हमारी normal task है, जैसे not human भी calculation कर सकता है, right? Not human भी ब्रेन में अपने डेटा को सेव कर सकता है, नो डाउट। जो बट हमें फास्ट चाहिए, हमें फास्ट कंप्यूटेशन चाहिए, क्योंकि अगर इफ़ यू वांट टॉक अबाउट कि आई वांट टू मल्टीप्लाई 234 मल्टीप्लाई 500, तो दैट्स पॉसिबल फॉर द ह्यूमन एज वेल। ह्यूमन भी वो काम कर सकता है, डेफिनेटली ह्यूमन भी कर सकता है, बट हमें फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, हमें ऑटोमेशन चाहिए, हमें ईजिली टास्क चाहिए था, हमें सिंप्लिसिटी चाहिए थी, राइट। दैट्स वाई ह्यूमन ने क्या किया, हम कंप्यूटर साइंस में डाइवर्ट हुए हैं, कंप्यूटर साइंस में हम शिफ्टेड हुए हैं। कंप्यूटर साइंस में हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने थे, हमें कुछ ऐसे लॉजिक्स को डेवलप करना था, विद द हेल्प ऑफ दैट लॉजिक्स वी कैन ईजिली सिमुलेट आवर ह्यूमन लाइफ, राइट। इफ यू वांट से दैट कि हम ईजी और बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से हम अपनी ह्यूमन लाइफ को लीड कर पाएँ, राइट। तो दैट्स वाई हमने क्या किया है कि हमने कन्वर्ट किया है, आई विल से दैट कि हमने मिमिक किया है, एक्चुअली सिमुलेट किया है, आई विल से दैट कि हमने मिमिक किया अपनी ह्यूमन लाइफ को कंप्यूटर वर्ल्ड में, right? Because if I want to say that I have already taken one example of calculator. In calculator, if I'm taking an example of calculator, definitely with the help of calculator you can easily आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, हर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ह्यूमन भी कर सकता है, डेफिनेटली ह्यूमन भी कर सकता है, बट ह्यूमन टेक्स टाइम, राइट। हेलो, May I interrupt, ma'am? यस, May I interrupt, ma'am? या यस विजय। मैम ऐसा लग रहा है मैम ऐसा लग रहा है कि आप है ना कुछ रीडिंग कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी फास्ट एंड फ्यूरियस आप तो बोल रहे हैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके, मतलब मेरी स्पीड थोड़ी स्लो होनी चाहिए। जी मैम। ओके ओके, फाइन फाइन, मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर देती हूँ, ऑलराइट। एक्चुअली when I'm talking about कि computer world, right, because firstly we should know about that कि why we have to shift it in a computer world, right, because मैं यही बोलूँगी कि जो भी काम था डेफिनेटली दे आर वेरियस कैलकुलेशन। अगर मैं एग्जांपल लूँ कैलकुलेटर का, राइट नाउ कैलकुलेटर इज अगेन अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस, राइट नाउ, राइट। कैलकुलेटर क्या परफॉर्म कर रहा है, एडिशन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो वो परफॉर्म कर रहा है, राइट। बट डेफिनेटली वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन थे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर किए जा सकते, ह्यूमन भी परफॉर्म कर रहा है, राइट। नॉर्मल अगर मैं ह्यूमन को बोलूँ कि 2+2 करना, डेफिनेटली वो भी 2+2 कर सकता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बोलूँ कि उसे, अगर मैं कैलकुलेटर को बोलूँ कि उसे 2+2 करना, डेफिनेटली वो भी 2+2 कर सकता है, राइट। बट वाई वी नीड अ कंप्यूटर वर्क, क्योंकि हमें फास्ट कंप्यूटेशन चाहिए था। ह्यूमन के पास एक्चुअली डेफिनेटली ह्यूमन के पास टाइम कम है, ह्यूमन के पास मेमोरी कम है, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ अनदर टास्क भी हैं। तो हमें अपनी लाइफ को ईजियर बनाने के लिए कुछ ऑटोमेशन चाहिए था, जिससे कि जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वही टास्क ईजिली परफॉर्म हो पाए, राइट, ईजिली परफॉर्म हो पाए, टाइम कंज्यूमिंग परफॉर्म हो पाए। दैट्स वाई नाउ व्हाट इज कंप्यूटर वर्ल्ड है, इन फैक्ट टॉकिंग अबाउट 40 to 50 ईयर्स से ही कंप्यूटर वर्ल्ड आ गया है, राइट। बिकॉज कंप्यूटर वर्ल्ड में हमने क्या किया है कि हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, जैसे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो वी कैन ईजिली परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ आवर मोबाइल फोन्स, राइट। हमें अगर अब कम्युनिकेशन करना है, जैसे अगर मुझे अपने
जो भी मैं बात कर रही हूँ, अगर मुझे किसी रिमोटली कोई रिमोट पे पर्सन, कोई अनदर कंट्री में कोई पर्सन बैठा हुआ है, अगर मुझे उससे वीडियो कॉल करनी है, देन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वी कैन कम्युनिकेट दैम इजली, राइट। बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर वर्ड मीन्स ह्यूमन लाइफ को ईजियर बनाने के लिए जो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, जो हमने टेक्नोलॉजीज यूज़ की, जो हमने एप्लीकेशंस को डेवलप किया है, दोज और कम्स टू अ कंप्यूटर वर्ड, राइट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर वर्ड, इन कंप्यूटर वर्ड डेफिनेटली व्हेन टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर वर्ड में हार्डवेयर आएगा सबसे पहले। इफ टॉकिंग अबाउट कि कंप्यूटर वर्ड में क्या आएगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आएंगी, राइट। क्योंकि हमें जो भी हमारा डेटा होता है, डेफिनेटली जो भी हमारा डेटा होता है, वैन जब टू ह्यूमंस भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अगर 2 पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे मैं अभी कम्युनिकेट करूँ अपने फ्रेंड से, जो मेरा फ्रेंड सामने बैठा हुआ है, डेफिनेटली जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन जो होता है वो वेव्स के फॉर्म में होता है, राइट। वेव्स के फॉर्म में हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। इट मीन्स दैट कि जो भी हमें कम्युनिकेशन फॉर्म करना है, जैसे क्योंकि बिकॉज हम ह्यूमन लाइफ को मिमिक कर रहे हैं कंप्यूटर वर्ड में, राइट। टोटली हम वही काम करना चाहते हैं, बट हम फास्ट प्रोसेसिंग से करना चाहते हैं, बट टोटली हम काम वही करना चाहते हैं। तो जैसे दो ह्यूमन बींग्स भी जब नॉर्मल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो जो डेटा कम्युनिकेट होता है, बिकॉज मैंने अपने माउथ से कुछ भी मैंने बोला, एंड विद द हेल्प ऑफ ईयर, जो सामने सेकंड पर्सन होगा, विद द हेल्प ऑफ ईयर वो उस टॉक्स को, वो जो भी मेरी टॉक होगी वो उसको सुनेगा, राइट। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरा माउथ है, मेरा नोज है, दिस आर द इंटरफेस, विद द हेल्प ऑफ दैट हम किसी को सुन सकते हैं, किसी को स्पीक कर सकते हैं, या फिर लिसन कर सकते हैं किसी की बात को। बट जब एयर में मेरा डेटा जाता है, राइट, जब भी मेरा एयर में डेटा जाता है, तो वो डेटा वेव्स के फॉर्म में जाता है, सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है। तो सिमिलरली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे अगर ह्यूमन वर्ड को कंप्यूटर वर्ड में ट्रांसफर करना था, और डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, हमें जो भी डेटा को कम्युनिकेट करना है, डेटा कम्युनिकेशन मीन्स डेफिनेटली मेरा मोबाइल फ़ोन है, उसमें डेटा सेव भी होगा, मेरी जो एप्लीकेशन है वो सेव होंगी, जितने भी एप्लीकेशन आपकी, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, वट एवर एप्लीकेशन यू हैव, राइट। तो ऑल एप्लीकेशन सेव करनी है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन सेव करनी है, एप्लीकेशन इज कॉल्ड द डेटा, राइट। एवरीथिंग इज कॉल्ड द डेटा। अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन सेव करने, तो इट मीन्स एप्लीकेशन इज ऑल्सो अ डेटा, मुझे डेटा सेव करना है। तो डेटा अगर मुझे सेव करना है, डेफिनेटली मुझे किस में सेव करना होगा, मुझे सिग्नल्स के फॉर्म में सेव करना होगा, बिट्स एंड बाइट्स के रूप में सेव करना है, मुझे मेमोरी में डेटा को सेव करना है, राइट। तो इट मीन्स दैट मुझे अपनी ह्यूमन लाइफ को टोटली मिमिक करना है आपकी कंप्यूटर वर्ड की लाइफ में। तो हमें सेम टाइप की टेक्नोलॉजी, सेम टाइप का फॉर्मुलेशन को यूज़ करना होगा। दैट्स वाई जब भी हम कंप्यूटर वर्ड में आए, स्पेसिफिकली हमने पहली चीज़ यूज़ की कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स इन द सेंस जैसे कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, गोल्ड होता है, राइट, प्लास्टिक होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, मेरा जो लैपटॉप है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, उसकी जो फील्ड है, जो शील्ड है, वो प्लास्टिक की है, अंदर जो उसका मदरबोर्ड लगा होगा वो एक अलग मटेरियल का बना होगा। दिस ऑल आर द एक्चुअली मटेरियल्स, राइट, दिस ऑल आर द एक्चुअली मटेरियल्स। विद द हेल्प ऑफ दैट मटेरियल्स एक्चुअली हमें उसमें इंटेलिजेंस डालना था, राइट। क्योंकि इफ हम टॉकिंग अबाउट कि मुझे इंटेलिजेंस डालना, तो इंटेलिजेंस हम किस में डालेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल्स है हमें उसमें इंटेलिजेंस डालना है। वो हमारे पास डिवाइसेस हैं, वो हमारे पास, इफ आई डिवाइसेस तो एक्चुअली बाद में बने, डिवाइसेस का मतलब होता है जैसे अगर टॉकिंग अबाउट कि मेरे पास मोबाइल डिवाइस है, राइट, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास मोबाइल डिवाइस है, तो मोबाइल डिवाइस इज द थिंग कि उसमें हार्डवेयर भी है, उसमें सॉफ्टवेयर भी है, मीन्स इट्स अ कंप्लीट डिवाइस है। टॉकिंग अबाउट दिस इज अ डिवाइस, इसका मतलब वो एक कंप्लीट डिवाइस है, यानी कि उस पर सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, सारे, इट्स अ कंप्यूटर वर्ड, इट्स अ कंप्यूटर डिवाइस, राइट। मीन्स वो कंप्लीट डिवाइस है, वो कंप्लीट थिंग है जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो रही है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल डिवाइस, इन मोबाइल डिवाइस के बहुत सारे पोर्शंस हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे टॉकिंग अबाउट अगर हमारी मोबाइल डिवाइस है, तो मोबाइल डिवाइस में क्या होगा, चार्जिंग भी होगा, चार्जिंग भी है, बैटरी भी हो रही है, प्लास्टिक भी है, कवर पेपर भी है, ग्लास भी लगा हुआ, तो दिस ऑल आर जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल डिवाइसेस हैं, जो हमारी मेन मटेरियल डिवाइसेस हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आपकी हार्डवेयर कहलाती है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप में मेरा अगर मदरबोर्ड है, मेरा जो फैन है, जो मेरा चार्जर लगा हुआ है, जो मेरी बैटरी लगी हुई है, दिस ऑल कॉल्स द, जो अगर मैं माउस की बात करूँ, माउस मैंने लगा दिया, जो मेरा मॉनिटर है, दिस मॉनिटर है, जो मेरी स्क्रीन है, दिस ऑल आर कॉल्ड द हार्डवेयर डिवाइसेस, राइट। वी हैव टू यूज अ हार्डवेयर डिवाइस बिकॉज वी हैव अ हार्डवेयर, वी हैव अ मटेरियल जो अवेलेबल है मार्केट में राइट नाउ, राइट। हमें क्या करना था, उस पर इंटेलिजेंस डालना था,
ओके, एक्चुअली कंप्यूटर वर्ड में क्या हुआ है कि हमें उसमें इंटेलिजेंस को फॉर्म करना है, और हमें भी पता है कि जो हमारी हार्डवेयर होती हैं, जो भी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 0101 के रूप में काम करती हैं। मीन्स अगर मुझे उसमें कोई डेटा को सेव करना है, डेटा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा, तो डेटा कैन बी योर एनी एप्लीकेशन। यूट्यूब जो आपकी एप्लीकेशन है वो भी एक डेटा है, राइट? आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन है वो भी आपका डेटा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, राइट? क्योंकि आपने देखा होगा अपने मोबाइल फ़ोन, अगर आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका नॉर्मल सैमसंग के मोबाइल फ़ोन से आप उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, राइट? इज़ ऑल्सो अ डेटा। हर चीज़ डेटा होती है, हर चीज़ डेटा होती है। इफ़ एम टॉकिंग अबाउट डेटा, डेटा मीन्स इफ मैंने ये बोला कि आई एम अ स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल्सो अ डेटा। मैं यहाँ रहती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो अ डेटा। बिकॉज अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ तो एप्लीकेशंस भी क्या है, यूट्यूब एप्लीकेशन है, उसमें भी डेटा है, उसमें वीडियो का डेटा है, राइट? कभी भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है आपके मोबाइल फ़ोन में, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, जब आपकी एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होती है तो जो उसका कोड होता है, जो उसका कोड, डेफिनेटली हर एप्लीकेशन कोडिंग लैंग्वेज में फॉर्म हुई है, तो जो भी उसका कोड होता है, दैट कोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डेटा। क्योंकि उस कोड को भी रन होता है, वो कोड भी रन होता है आपके हार्डवेयर में, वो कोड भी रन होता है विद द हेल्प ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? दिस ऑल आर कॉल्ड्स अ डेटा। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरे पास सबसे पहले हार्डवेयर था, डेफिनेटली वी हैव अ हार्डवेयर। जस्ट अ सेकंड, आई वांट जस्ट look at one screen. Yeah, my laptop is just a second, guys. Just a second, I have to shift it 1 to 2 slide more. My system is actually slow. Yeah, when I'm talking about, you can see this diagram. In this diagram, what we want to see that there's a user. User means you all students, right? जो भी हम customers है, जो भी client है. If I'm talking about कि जो भी applications को use कर रहे हैं, right? वो users होते हैं. Users कोई भी person हो सकता है, right? कोई भी customer, कोई भी client is called a user. Okay? When I'm talking about second is the application. Application means if I'm taking one example of your mobile phone, right? In your mobile phone, if I'm talking about user, user is you. Okay, user is actually you. And if I'm talking about application, application means जो भी आपके मोबाइल फोन में applications है, जैसे YouTube is application, WhatsApp is application, those are called the application, right? वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में रन हो रही है, ओके? एंड थर्ड क्वेश्चन क्या आता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन इज अ हार्डवेयर, राइट? दीज आर एक्चुअली 4 layers. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर वर्ड, इन कंप्यूटर वर्ड दीज आर एक्चुअली कॉल्ड द 4 layers, right? Because we have a 4 layers. First layer is actually your hardware. Hardware means your laptop. Your laptop, yeah, I'm talking about. Yeah, when I'm talking about, these are actually 4 layers. Okay, these are actually 4 layers when I'm talking about the computer side, when I'm talking about any computer device. Okay, if I'm talking about taking an example of your mobile phone, and your mobile phone have, definitely your mobile phone has battery charger, your mobile phone has chips as well, your mobile phone has screen as well, whatever thing we have touched, okay, whatever, because each and everything in your electronic device made with the help of a material. बिकॉज हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं, हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल. विद द हेल्प ऑफ दैट वी मेक अ हार्डवेयर, राइट? आर फर्स्ट लेयर इज एक्चुअली कॉल्ड द हार्डवेयर. बिकॉज वाई हार्डवेयर? बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट कि इस हार्डवेयर, विद द हेल्प ऑफ दैट हार्डवेयर वी कैन सेव द डेटा. बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कि हमें कंप्यूटर वर्ड में क्या करना है, डेफिनेटली बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन वर्ड में भी क्या है, सब कुछ डेटा है, राइट? ईच एंड एवरीथिंग वी हैव अ डेटा. हम ही डेटा को हम बोलते हैं, डेटा को हम सुनते हैं, डेटा को ही हम अपने मेमोरी में सेव करते हैं. डेटा ही हमारी एक्चुअली प्रेजेंटेशन है राइट नाउ, राइट? अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा नाम जसप्रीत है, दैट्स ऑल्सो अ डेटा, राइट? तो अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे कंप्यूटर वर्ड में भी जाना है, तो अल्टीमेटली माई एम इज़ कि मेरे डेटा को कैसे सेव करना है, कैसे डेटा को प्रोसेस करना है,
बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेरा डेटा सेव हो रहा है इन ह्यूमन लाइफ, तो मैं अपनी मेमोरी में डेटा को सेव कर रही हूँ। अगर मुझे कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है, अगर मुझे 2+2 भी करना है, तो विद द हेल्प ऑफ आवर माइंड हम उस कैलकुलेशन को करते हैं, राइट। तो इट मीन्स दैट इन आर ह्यूमन लाइफ में बेसिकली आर एम क्या है कि जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को कम्युनिकेट करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना, उस डेटा को अपनी मेमोरी में सेव करना। एंड इनफैक्ट अगर कोई कैलकुलेशन करनी है या फिर आप टॉकिंग अबाउट की प्रोसेसिंग करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ आवर ह्यूमन माइंड उस डेटा को प्रोसेस करना। सिमिलरली हमने कंप्यूटर वर्ड में किया, कंप्यूटर वर्ड में भी आप मेन एम किया था कि जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को सेव करना, उस डेटा को प्रोसेस करना, राइट। अगर मुझे डेटा को सेव करना है, डेटा को प्रोसेस करना है, तो डेटा को सेव करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास मटेरियल्स क्या है, हमारे पास अवेलेबल थिंग्स क्या है, तो हमने उस चीज़ को फाइंड आउट किया। जब हमने अवेलेबल थिंग्स को फाइंड आउट किया तो एवरीवन वाज लाइक कि हमारे पास जो है वो मटेरियल्स हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, राइट। हमारे पास प्लास्टिक है, हमारे पास कॉपर है, उन डिफरेंट टाइप के मटेरियल से हमें कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनानी पड़ेगी जिससे कि ईजिली डेटा प्रोसेस हो सके और ईजिली डेटा वहाँ पे सेव हो सके, राइट। बिकॉज हमें मिमिक करना है, इवन टॉकिंग अबाउट हमें ह्यूमन लाइफ को मिमिक करना है। तो हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट किया एग्जैक्टली जो बड़े बड़े रिसर्चर्स थे उन्होंने फाइंड आउट किया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक, कैसे जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, कैसे डिफरेंट टाइप के, वी हैव अ कॉपर, वी हैव अ गोल्ड, वी हैव अ एल्यूमिनियम, वी हैव अ प्लास्टिक, कैसे जो हमारे पास मटेरियल्स है, विद द हेल्प ऑफ दैट मटेरियल्स हम उसमें इंटेलिजेंस डाल सकते हैं। इंटेलिजेंस डाल सकते हैं, इट मीन्स हम कैसे उन डिवाइसेस में, कैसे उन मटेरियल्स में, कैसे उनको हम सेटअप करें कि विद द हेल्प ऑफ दैट हम उसमें भी डेटा को सेव कर सकते हैं एंड डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। दोज मटेरियल आर एक्चुअली कॉल्ड योर हार्डवेयर, ओके। हार्डवेयर में हमने वही किया। इफ हम टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड आता है, हार्डवेयर में आपका सीपीयू आता है, हार्डवेयर में आपका जितने भी माउस आता है, आपकी स्क्रीन आती है, दीज आर कॉल्ड द हार्डवेयर, जिसको एक ह्यूमन पर्सन टच कर सकता है, जिसमें हमें इंटेलिजेंस डालना था। बिकॉज रियल वर्ल्ड में यही डिवाइसेस हैं, यही ऐसा मटेरियल जिसमें हम इंटेलिजेंस डालना चाहते हैं, राइट। इन्हीं डिवाइसेस पे हमें डेटा को सेव करना है, इन्हीं डिवाइस पे हम डेटा को सेव भी करते हैं, इन्हीं में हम प्रोसेस भी करते हैं। वी हैव अ मदर बोर्ड, वी हैव अ हार्ड डिस्क, वी हैव अ एसएसडी एज वेल, राइट। विद द हेल्प ऑफ दोज मटेरियल्स हमने इन जो ये प्रोडक्ट है, जो हार्डवेयर है, हमने इनको बनाया है, राइट। इन्हीं हार्डवेयर पे, इन्हीं सीपीयू पे, विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ मदरबोर्ड, वी कैन सेव आवर डेटा, वी कैन सेव आवर डेटा, वी कैन प्रोसेस आवर डेटा, राइट। डेफिनेटली हम इसी में करते हैं। एंड द मेन क्वेश्चन इज दैट कि मेजॉरिटी ऑफ द ये हार्डवेयर जो होते हैं, हार्डवेयर 0101 की कॉम्बिनेशन में चलते हैं, राइट। बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ईच मटेरियल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग राइट नाउ, ओके। क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। राइट नाउ क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई तो डेफिनेटली किसी भी मटेरियल के 3 स्टेट्स हो सकते हैं, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अर्लियर टाइम्स किसी भी मटेरियल के हम क्या करते थे, बाय डिफॉल्ट मान के चलते थे कि हर मटेरियल के 2 स्टेट होते हैं, इधर इज अ 0, इधर इज अ 1, इधर इज अ पॉजिटिव, इधर इज अ नेगेटिव। दैट्स वाई जब भी हमने हार्डवेयर में किसी मटेरियल में डेटा को सेव करने का ट्राई किया, तो हमने क्या कहा कि जब भी डेटा वहाँ पे सेव होगा, देन वो 0101 के फॉर्मेट में सेव होगा। तभी जब भी आई एम टॉकिंग अबाउट कि नेटवर्क में हमारा डेटा जाता है, राइट। टुडे नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेट है, इंटरनेट पे हमारा डेटा जा रहा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हमारा जब भी हम बात करते हैं कि हमने कोई प्रोसेसिंग फॉर्म की, राइट, हमने कुछ कंप्यूटेशन फॉर्म किया इन अ कंप्यूटर, इन अ मोबाइल फ़ोन, इन अ लैपटॉप, हमने कोई कंप्यूटेशन को फॉर्म किया है। तो जो भी हम कंप्यूटेशन फॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम डेटा को सेव कर रहे हैं, जो भी हम एप्लीकेशन सेव करते हैं, जो भी हम फाइल सेव करते हैं, दोज ऑल फाइल्स सेव इन द फॉर्म ऑफ 0101, राइट। तो इट मीन्स दैट कि हम हार्डवेयर में अगर मुझे डेटा को सेव करना है, तो डेफिनेटली वी हैव टू कन्वर्ट दोज डेटा, ऑल दोज डेटा, जो भी हम बात, इनफैक्ट जो मैं बात भी कर रही हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि आई एम अ स्टूडेंट, दिस डेटा इज ऑल्सो सेव इन द फॉर्म ऑफ 0101, राइट। तो डेफिनेटली हार्डवेयर में हम इसी टाइप के डेटा को सेव करते हैं, बट हमें ह्यूमन का नेचर भी पता है, राइट। ह्यूमन कभी भी 0101 में कन्वर्ट, बिकॉज डेफिनेटली 0101 इज अ लैंग्वेज जो ह्यूमन के लिए लर्न करना इज इम्पॉसिबल, राइट। ह्यूमन हमेशा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, ह्यूमन हैव अ वेरी मच लैंग्वेज, देयर इज अ हिंदी, देयर इज अ इंग्लिश, बट वी डोंट हैव अ लैंग्वेज ऑफ 0101, right? So that's why we need some conversion, right? We need some conversion with the help of, we need some translator, or you can say that कि हम ये mediocre चाहते हैं, कोई converter चाहते हैं, with the help of that कि हमारी जो language है, हमारी जो English language है, हमारी जो भी हम language यूज़ कर रहे हैं, उस language को हम convert कर पाए 0101 में,
सो दैट हमारे हार्डवेयर में जो भी प्रोसेसिंग हो रही हो, चाहे जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है या फिर जो भी आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन वट एवर प्रोसेसिंग जो आप करनी है वो ईजिली हार्डवेयर में हो पाए, क्योंकि हार्डवेयर हमारा 0101 में ही कैलकुलेशन कर रहा है, हार्डवेयर हमारा 0101 में डेटा को सेव कर रहा है. फॉर दैट there are various softwares we have built, right? There are various softwares we have built. We have a system software, we have an application software. Application software, when I'm talking about application software, your YouTube is application software, your WhatsApp is application software. Actually these are the application softwares. Application softwares means those softwares which is made for a particular task, right? Made for a particular application. When I'm talking about application, it means that application software are those software which is mainly useful for a particular task, right? WhatsApp is a messaging app. If I'm talking about it, it's mainly useful for a messaging, for transmitting the messages. If I'm talking about YouTube, YouTube is mainly useful for video app. Those are application software which is mainly meant for a particular task, right? And user is definitely, user is upper layer, user have to use that application, right? If I'm talking about operating system is actually called the system software. Okay, system software, it means that actually in a simple terms, when I'm talking about what is the operating system is actually a interface between your software to a hardware. It's a simple term. When I'm talking about what is the operating system is actually an interface, or I want to say it's a kind of a mediator by which your application software, by which your app software, by which I want to say your application software or your another software easily communicate to your hardware, right? Because we don't know about a 0101 language, right? We don't know about 0101 language, and we only know about the English language, राइट. मैं टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन, अगर मैं व्हाट्सअप यूज़ करती हूँ, कुछ भी यूज़ करती हूँ, तो मैं 0101 में डेटा को ट्रांसफर नहीं करती, राइट. मैं 0101 में डेटा को टाइप नहीं करती, मैं एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप करती हूँ. इन दैट वे में आई वांट से दैट कि दे आर टू पोर्शन, देयर इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देयर इज अ कमांड लाइन इंटरफेस, राइट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज अ डोर इंटरफेस जो मेनली हम यूज़ करते हैं. ऐसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का जो इंटरफेस आता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो जाता है, तो जो इंटरफेस आता है, जब हमारे ऐप्स रखने लग जाते हैं, दो ऑफ कॉल्ड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. Graphical user interface are graphics based interface. When I'm talking about graphics based interface means those interface which is easily understood by the normal person, normal human being. Because हमने जो भी कंप्यूटर पर बनाया वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अंडरस्टूड करते हुए बनाया है. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए? एप्लीकेशन टोटली, जब मेरा मोबाइल फ़ोन ऑन हो तो जितने भी ऐप्स हों प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हों, मैं जस्ट उस एप्लीकेशन पे क्लिक करूँ और जो भी मेरा टास्क मुझे परफॉर्म करना वो ईजिली परफॉर्म करूँ. आई डोंट वांट बैकग्राउंड कि बैकग्राउंड में कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, बैकग्राउंड में कैसे मेरा 0101 में डेटा सेव हो रहा है, बैकग्राउंड में कैसे डेटा ट्रैवल हो रहा है. आई डोंट वांट डू दैट, क्योंकि यूज़र को ये सब नहीं चाहिए. यूज़र को इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में नहीं जाना. यूज़र को केवल जो हमारा ग्राफिकल फेस है, जो भी हमारा जो यूज़र इंटरफेस है वो उसका अच्छा होना चाहिए. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द यूज़र जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में नहीं जाना चाहता. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, राइट. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट what is the main task for operating system is in simple terms. When I'm talking about operating system is a intermediator, or I must say that is a mediator between your application to your hardware, right. कहते हैं एक लेयर बना दी, there's just one layer. हमने एक लेयर बना दी. ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्चुअली दैट लेयर, दैट इंटरमीडिएट लेयर जो कम्युनिकेट कराती है, जो हमारे इंट्रैक्ट कराती है, हम टॉक हमारे कम्युनिकेट कराती है और इंट्रैक्ट कराती है हमारे एप्लीकेशंस को हमारे हार्डवेयर से, राइट. बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर जो यूज़र यूज़ कर रहा है. यूज़र को जो हमारे बैकग्राउंड हो रहा है, जो हार्डवेयर में कंप्यूटेशन हो रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है. केवल वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करता है. एक ग्राफिकल एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है जो यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक प्रेजेंटेबल थिंग है, यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव थिंग है, राइट. उसको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में नहीं जाना है कि कैसे कोड हुआ, कैसे डेटा सेव हो रहा है, कैसे सीपीयू वर्क कर रहा है. बिकॉज दिस ऑल द हार्डवेयर पोर्शन कि सीपीयू ने कैसे काम किया, सीपीयू ने डेटा को कैसे 0101 में कन्वर्ट किया, सीपीयू ने कैसे उस डेटा को सेव किया है, इस पोर्शन से उसको जाना ही नहीं. इस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है, right. So when I'm talking about basic of operating system, when I'm talking about what is the actually operating system is a, just we want to say that it's a
graphical user GUI layer. I'm talking about can be a GUI layer. It's an intermediate layer. It's a one interface जो सॉफ्टवेयर एंड आपके हार्डवेयर के बीच में एक लेयर फॉर्म कर देता है, बाय विच जो आपके जो यूजर्स हैं वो केवल आपके जो मेन टास्क है, और आई वांट से जो आपका प्रेजेंटेशन वाला टास्क, जो आपका ग्राफिकल फेस है, वो केवल वही देख पाए। मेन जो आपका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, जो आपके हार्डवेयर से परफॉर्म हो रहा है, उस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को वो ना देख पाए, राइट। बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल फ़ोन, नाउ इट इज़ मोबाइल फ़ोन कोई भी यूज़ कर सकता है। मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के लिए डजंट मीन दैट कि आपको कंप्यूटर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इट डजंट मीन दैट, राइट। इफ़ यू हैव अ मोबाइल फ़ोन, आपके पास कुछ एप्लीकेशंस है, आप जस्ट आप टच करोगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, और जो आपको टास्क परफॉर्म करना वो आप इजीली टास्क परफॉर्म कर सकते हो। एक्चुअली में कंप्यूटर वर्ड को बनाया ही ऐसे गया है कि जो हमारे क्लाइंट्स है, जो हमारे यूज़र है, जो हमारे ऑडियंस है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस को जानती हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस को ना जानती हो, वो ईजिली अपने टास्क को परफॉर्म कर पाए, राइट। इफ़ एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको व्हाट्सअप चलाना है मोबाइल फ़ोन में, राइट नाउ अगर आपको व्हाट्सअप चलाना है मोबाइल फ़ोन में, तो आपको ये चीज़ पता नहीं होना चाहिए कि CPU कैसे काम कर रहा है, राइट, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, या फिर हमारे व्हाट्सएप की जो कोडिंग लैंग्वेज है वो क्या है, आपको इन सब से मतलब नहीं होता है। एक नॉर्मल यूज़र के व्हाट्सएप चलाना चाहता है, वो जस्ट व्हाट्सएप इंस्टॉल करेगा एंड मैसेज सेंड करेगा। दिस इज एक्चुअली अ मेन थिंग कि हमें यूज़र की लाइफ को और इजी बनाना है, दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे यूज़ किया गया, राइट। बिकॉज that can be possibility कि आप 0101, जो कि obviously if you are computer science expert, definitely आप 0101 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप 0101 की लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। so that's possibility, but when I'm talking about flexibility, when I'm talking about presentation, then you need a GUI version, you need an operating system, right? Operating system, when I'm talking about what is the operating system, is that just an interface, it's just a mediocre, it's just a GUI layer. With the help of that, your software can easily communicate to your hardware, alright. So this is actually a basic version. When I'm talking about your subject name is a fundamental of computer science, right? Your subject name is actually a fundamental of computer science. When I'm talking about fundamental computer science, then what are the basic terms, okay, what are the basic terms you want कि आपको पता होने चाहिए, what are the basic terms, basic tools terms. First basic term is we already know about it, what is the hardware. When I'm talking about computer, you should know about it, what is the hardware. Your CPU is the hardware, your input output device is the hardware. What's your operating system? Operating system is actually your interface, is a GUI layer, is an interface, a mediocre, which by which you can communicate, by which any software can easily communicate to your hardware, right? It's just an abstraction layer, you can say it's just an abstraction layer by which user only want to use actually your applications, right? You only want application, only want to use applications, right? Your WhatsApp, your YouTube application, they don't want to go into implementation part. That's why you have to make this type of operating system, this type of layer, this type of GUI layer, right? When I'm talking about application, definitely they are okay. When I'm talking about application, just a second. Yeah, when I'm talking about the application, then in application, okay, when I'm talking about application means your application software, right? Application is your WhatsApp, your YouTube, these are the extra application softwares, okay. With the help of that, we can easily perform one task, okay. If I'm talking about कोई भी आपकी application होती है YouTube पे, तो वीडियो application के लिए कोई particular task के लिए form की गई data application. Then finally we have a user layer, the user, that client, that customer which want to use that application, right? So these are the things when I'm talking about the fundamental computer science. These are the first portion, because these are actually your first unit, okay? How your operating system works. First you should know about it, what is the operating system. Then in a first unit हम जाएंगे और डेप्थ में कि how actually your computer system, how actually your operating system works, okay. Means if I'm talking about कि it works as a GUI layer, it works as an intermediator, it works as a translator. When I'm saying these words, then what do you mean by these words in depth, okay? In depth in words का क्या मतलब है, we talk about in a fourth unit, okay. They are a concept, they are various concept की how actually operating system works, okay. Those comes in your fourth unit. There's a another term which we have called majority of the times algorithm, okay. There's a one unit called the algorithm in your syllabus, right? What do you mean by algorithm? If I'm talking about algorithm, then what do you mean by algorithm? Basic terminology, because today is the actual introductory lecture, okay. That's why I just
टच इट अप, मैं बस ऊपर ऊपर से बताने की कोशिश करी, जस्ट टच कर रही हूँ आपके टॉपिक को, राइट? कि एक्चुअली बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्टली यू शुड नो अबाउट अ सब्जेक्ट, राइट? कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली सब्जेक्ट में। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, आपको बेसिक पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड देन वी गो इनटू अ डिटेल कि हाउ एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेट कर रहा है, कैसे वो मीडियोकर तरीके से वर्क कर रहा है, कैसे हमारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इजीली ट्रांसलेट हो पा रही 0101 में, एंड देन अगेन वी हैव कन्वर्ट टू 0101 टू योर नॉर्मल लैंग्वेज, राइट? तो कैसे सीपीयू वर्क करता है, कैसे सीपीयू हैंडल करता है, बिकॉज यू हैव अ मल्टीपल एप्लीकेशन, आपके मोबाइल फ़ोन में एट अ टाइम मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, राइट? कैसे सीपीयू हैंडल करता है आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस को, कैसे उससे पता चलता है कि ये व्हाट्सएप का डेटा है और मुझे व्हाट्सएप में ही ट्रांसलेट करना है, राइट? तो दीज ऑल थिंग्स आर हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दीज आर कम्स इनटू योर फोर्थ यूनिट, ओके? देयर इज अनदर वन टर्म जो आपके सब्जेक्ट में है, वो है एल्गोरिथम। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एल्गोरिथम, जस्ट अ सेकेंड, I think it's the first slide. Alright, when I'm talking about the algorithm, then what do you mean by algorithm? Because when जब भी आप कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ेंगे तो there's a term called the algorithm, there's a term called the coding, right? Then what do you mean by algorithm and what do you mean by coding? So when I'm talking about the algorithm, just a second. Okay, when I'm talking about the algorithm, right? What do you mean by algorithm actually? Algorithm is a step-by-step manner to perform one particular task. ओके, इफ़ आई एम नॉट से डैट कि अगर मुझे अपने घर में चाय भी बनानी है, तो चाय बनाने का एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, राइट? कि हम गैस को ऑन करेंगे, देन हम जो भी पैन होगा उसको रखेंगे, देन वाटर डालेंगे, देन टी डालेंगे, शुगर डालेंगे, दीज ऑल आर द एक्चुअली स्टेप चाय को बनाने का। फाइनली माई प्रोडक्ट इज अ टी, ठीक है, फाइनल माई प्रोडक्ट इज अ टी, बट चाय को बनाने का जो प्रोसीजर है, देयर इज अ वन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो हमें फॉलो अप करना होता है, एंड आफ्टर दैट हम एक पर्टिकुलर टास्क जो भी हमारा प्रोडक्ट का आउटकम है टी, वो हम फॉर्म कर सकते हैं, राइट? मीन्स किसी भी टास्क को नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वी नीड अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, वी हैव अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ऑलराइट? देन इन सिमिलर वे जब भी हम कंप्यूटर वर्क की बात करेंगे, जब भी हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, चाहे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे मुझे सम करना है, राइट? मुझे 5 नंबर्स का सम करना है, तो डेफिनेटली अगर मुझे 5 नंबर्स का सम करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, दिस इज फ्लो ग्राफ, ओके, दिस इज फ्लो चार्ट। अगर मुझे 5 नंबर्स का सम करना है तो मुझे क्या करना होगा, डेफिनेटली मुझे वो 5 नंबर्स लेने होंगे, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि मुझे 5 नंबर्स हैं, मुझे 5 नंबर्स का सम करना है, तो डेफिनेटली सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे वो 5 नंबर्स को लेना होगा, यूजर से लेना होगा, देन आफ्टर डैट मुझे उन 5 नंबर्स का सम करना होगा, राइट? तो सम करने के लिए डेफिनेटली अगर मैं सम कर रही हूँ तो मुझे 5 नंबर जो मेरे एंटर होंगे वो मैं कहीं पे सेव भी करूँगी, राइट? इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे 5 नंबर्स को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना है, दीज आर द 5 नंबर्स, ठीक है? तो अगर मुझे इन 5 नंबर्स को सम करना है तो डेफिनेटली अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करूँगी तो ये जो 1 जो सिंगल में डिजिट्स हैं ये भी पहले कहीं सेव होंगी, देन सेव होने के बाद इनमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये किसी फाइनल आउटकम में सेव होंगी, फाइनल वेरिएबल में सेव होंगी। If I am talking about कि I have to perform 5 number addition, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फर्स्टली हमें क्या करना होगा, ये जो नंबर्स हैं यूज़र से मांगने होंगे कि यूज़र आप अपने 5 नंबर्स मुझे दीजिए। जैसे यूज़र अपने 5 नंबर्स मुझे प्रोवाइड करेगा, देन इन 5 नंबर्स को डेफिनेटली मुझे अपने कंप्यूटर में या फिर जो भी मेरी कंप्यूटर की मेमोरी है, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव अ मेमोरी, ओके, हम ह्यूमन वर्ड को मिमिक कर रहे, डेफिनेटली वी हैव अ मेमोरी फॉर सेविंग आवर डेटा, वी हैव अ मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग आवर डेटा, राइट? तो हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली सबसे पहले यूज़र इनपुट करेगा उन 5 नंबर्स को। आफ्टर इनपुटिंग दोज 5 नंबर्स, हम जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी होगी वो उन 5 नंबर्स को सेव करेगी, राइट? उन 5 नंबर्स को सेव करेगी, देन हमारा सीपीयू जो होगा वो कैलकुलेशन करेगा, जो भी आपने मैथमेटिक ऑपरेशन दिया, अगर एडिशन दिया तो उस कैलकुलेशन को फॉर्म करेगा। कैलकुलेशन को फॉर्म करने के बाद फिर कोई अनदर मेमोरी लोकेशन होगी जो आउटपुट में होगी, क्योंकि अगर तुम टॉकिंग अबाउट 1 + 2 + 3 + 4 + 5, देन अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो देयर इज अ वन नंबर, आफ्टर एडिशन एक नंबर आएगा, वो नंबर भी आपका मेमोरी में सेव होगा,
राइट, मेमोरी में सेव होगा। उस मेमोरी को भी हम कोई नाम देंगे, जैसे मैंने उस मेमोरी को यहाँ पे नाम दे के रखा है सम। देयर इज अ मेमोरी, देयर इज अ वेरिएबल, ओके। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने उस मेमोरी को भी नाम दे के रखा है जहाँ पे मेरा वो एडिशन सेव हो रहा है, दैट मेमोरी, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एक्चुअली सम, ओके। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर इज अ काउंट, काउंट का मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे मैंने काउंट क्यों यूज़ किया है, बिकॉज यूज़र इनपुट कर रहा है, यूज़र इनपुट कर, यूज़र ने पहला नंबर इनपुट किया, देन नेक्स्ट किया, देन नेक्स्ट किया, तो वी हैव टू काउंट कि 5 नंबर्स हुए में कि नहीं हुए, राइट। टोटली ह्यूमन में, टोटल ह्यूमन वर्ड को मिमिक करो कि ऑब्वियसली अगर मैं कोई मुझसे अगर बोले, नॉर्मल ह्यूमन पर्सन बोले कि तुम्हें 5 नंबर को ऐड करना है, तो मेरे माइंड में क्या चलेगा सबसे पहले कि वी नीड 5 नंबर्स। और अगर मैं 5 नंबर्स को मांगूंगी, तो जैसे ही सामने वाला मुझे 5 नंबर्स इनपुट प्रोवाइड करता है, तो मेरे माइंड में काउंटर स्टार्ट हो जाता है कि इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, मेरे माइंड में ये काउंटर स्टार्ट हो गया। सिमिलरली जब मुझे कोड करना था, जैसे मैंने कंप्यूटर वर्ड में सेम टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश की, सेम हम वहाँ पे भी काउंटर यूज़ करेंगे। मैंने भी काउंटर नाम का एक वेरिएबल ले लिया, काउंटर नाम का वेरिएबल क्या करेगा कि वो काउंट करेगा, देयर इज अ +1, ओके, यू कैन सी हियर देयर इज अ +1, इट मीन्स दैट कि वो काउंट कर रहा है कि आपके 5 नंबर्स हुए कि नहीं हुए, जैसे हमारी मेमोरी काउंट करती है, ओके। टोटल मिमिक करो, टोटल ह्यूमन वर्ड को मिमिक करो जस्ट फास्ट प्रोसेसिंग के लिए। तो मेरा मेन टास्क क्या है, मेन टास्क इज वी हैव टू ऐड 5 नंबर्स। फॉर एडिंग 5 नंबर्स फर्स्टली यूजर इनपुट दोज 5 नंबर्स, तो यूज़र क्या करेगा, 5 नंबर्स को इनपुट कराएगा, इनपुट कराया, यहाँ पे उसने 5 नंबर्स को इनपुट कराया, एंड हम काउंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। काउंट का मीन्स क्या होता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट काउंट, काउंट मीन्स मैंने 5 नंबर काउंट किए कि 5 नंबर हुए कि नहीं हुए। आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी मेमोरी है उसमें हम सम कर रहे हैं, राइट, क्योंकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैंने फर्स्ट नंबर दिया, राइट, क्योंकि हमने क्या किया, एक मेमोरी, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया है, सम को मैंने इनिशियलाइज कर लिया है, मैंने ये एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, एक मेमोरी को एलोकेट कर लिया है कि इस मामले में इस लोकेशन पे मेरा जो सम है, जो डेटा होगा वो सेव होगा। सम मीन्स 5 नंबर्स का सम मेरा सेव होगा। यूजर क्या करेगा, पहले नंबर को इनपुट करेगा, फिर सेकंड नंबर को इनपुट करेगा। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले पहला नंबर लिया, सेकंड नंबर लिया, उनका एडिशन परफॉर्म किया, एडिशन परफॉर्म करने पे सम में जो भी मेरा मेन वेरिएबल था, जो भी मेरा आउटपुट वेरिएबल था सम, उस पर मैंने सेव किया। देन थर्ड नंबर आएगा, ओके, देन थर्ड नंबर आएगा, थर्ड नंबर को फिर से एडिशन में सेव करूँगी, क्योंकि जब हम एडिशन भी करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन एडिशन कैसे परफॉर्म करता है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे 5 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, नॉर्मल ह्यूमन कैसे करेगा, वी हैव अ 1 2 3 4 5, दीज आर 5 नंबर्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 किया, 3 आया, हमने 2 नंबर को सबसे पहले ऐड किया, 1 + 2 किया, 3 आया, देन मैं 3 को अगले नंबर से ऐड करूँगी, फिर सम आएगा, देन मैं अगले नंबर को ऐड करूँगी, देन सम आएगा, राइट। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे एडिशन परफॉर्म कर रहा है, सेम कंप्यूटर भी वैसे ही एडिशन परफॉर्म करेगा, सेम को मिमिक करना है हमें, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने काउंटर लगा के रखा है कि मुझे 5 नंबर्स काउंट करने हैं, और जैसे जैसे नंबर आते जा रहे हैं, राइट, जैसे जैसे मेरे पास 5 नंबर्स आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मैं सम को परफॉर्म करती जा रही हूँ, राइट। पहले 2 नंबर को किया, फिर जो 2 नंबर का सम आया उसको थर्ड नंबर से किया, जो थर्ड नंबर का सम आया फिर मैंने उसको फोर्थ नंबर से किया। दिस आर कॉल्ड एक्चुअली एल्गोरिथम। किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हम मैनर लिखते हैं, जैसे इसी डायग्राम को, ये मैंने डायग्राम लिखा, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, मेमोरी को एलोकेट किया, जो मुझे वेरिएबल्स चाहिए, जो मुझे लगता था कि मुझे यूज़ आएंगे जब मैं 5 नंबर्स को ऐड करूँगी, मैंने उनको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इनिशियलाइज मैंने यहाँ पे 0 से किया, बिकॉज 0 इज एक्चुअली वन, कहते हैं ना, it's a kind of brahmastra, right? 0 is actually an ideal number in our numerology, right? That's why मोस्टली चीज़ों को 0 से इनिशियलाइज किया जाता है, right? मीन्स अगर मैं 0 में कुछ भी ऐड करूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल मैथमेटिक्स, अगर मैं 0 + 1 करूँगी तो 1 ही आएगा, 0 को ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो दैट्स वाई हमने इसको इनिशियलाइज किया विद द हेल्प ऑफ 0। डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सिनेरियो में इनिशियलाइजेशन के टर्म्स चेंज हो जाते हैं, ओके। ये एडिशन का सिनेरियो था, दैट्स वाई मैंने 0 लिया, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने में इनिशियलाइजेशन अलग अलग हो जाते हैं, ओके। तो फॉर अ सिंपल सिनेरियो मैंने क्या किया, मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, देन मैंने 5 नंबर्स लिए, ऑब्वियसली ये काउंट करेगा 5 नंबर्स को, अगर 5 नंबर्स हो गए हैं देन डेफिनेटली आप एडिशन को प्रिंट करा दीजिए,
जो भी आपका सम है उसको प्रिंट करा दीजिए। अगर 5 नंबर्स नहीं हुए हैं तो यूजर से बोलिए कि आपको 5 नंबर्स प्रिंट 5 नंबर्स आपको चाहिए, आप कुछ नंबर इंसर्ट करिए, राइट। एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं, बिकॉज दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आप 5 नंबर को ऐड किसी डिफरेंट वे में करो और अनदर पर्सन उन्हीं 5 नंबर्स को ऐड किसी डिफरेंट प्रोसेस में करे, राइट। बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हम ह्यूमंस में डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के। चाय बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैन रखते हैं, पैन रखने में पहले मिल्क डालते हैं, देन टी एंड शुगर डालते हैं। कुछ लोग पहले वाटर डालेंगे, देन टी और शुगर डाल के देन मिल्क डालते हैं। टास्क एक ही है बट परफॉर्म करने के वेज अलग अलग हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक अगर आपका एक पर्टिकुलर टास्क है, उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के अगर डिफरेंट डिफरेंट वेज है, इसमें उसको परफॉर्म करने के डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स हो सकती हैं, राइट। अगर उस इसी स्ट्रक्चर को, इसी डायग्राम को मैं नॉर्मल इंग्लिश में लिखती हूँ, दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम? किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वट एवर यू हैव टू राइट अ सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। इसी एल्गोरिथम को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग लैंग्वेज में, दे आर सी प्लस प्लस, दे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जब हम प्रोग्राम करते हैं दैट इज कॉल्ड द कोडिंग। ओके, डेफिनेटली जब हम कोड करेंगे तो कोडिंग करने के लिए जब भी हम किसी चीज़ को कोड करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम इसी एल्गोरिथम को कोड करेंगे। कोड करने का मीन्स क्या है कि हम उसे अपने जो कंप्यूटर, जो हमारा हार्डवेयर है, उसके प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। बिकॉज व्हाट आर मेन एम इज, हमें पता है, यूज़र को पता है, वो यूज़र को ये लैंग्वेज समझ में आ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आ रही है डेफिनेटली, बट हमारे हार्डवेयर को वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। हमारे हार्डवेयर को लैंग्वेज समझ में आती है 0101। तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी हैव टू यूज सम कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज, राइट, सब हार्डवेयर फ्रेंडली लैंग्वेज, सो डैट मेरा हार्डवेयर इजीली अंडरस्टूड कर सके कि एक्चुअली में आप टास्क परफॉर्म क्या करना चाहते हो। दैट्स वाई दे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। जैसे मैंने अभी कहा कि ये एल्गोरिथम मैंने बना दिया, एल्गोरिथम में मैंने कहा कि मुझे 5 नंबर्स को एंटर कराना था, वो 5 नंबर सेव होंगे अब, क्योंकि मेरे कंप्यूटर का मेन टास्क क्या है, डेटा को सेव करना, डेटा को प्रोसेस करना, राइट। तो वो जो 5 नंबर से 5 नंबर डेफिनेटली मेरे डेटा, जो मैंने 5 नंबर्स को एंटर कराया है, वो 5 नंबर्स डेफिनेटली जो मेरा हार्डवेयर है वो वहाँ पे सेव होंगे, जो मेरे पास मेमोरी है वहाँ पे वो सेव होंगे वो 5 नंबर्स। जब वो 5 नंबर्स हमारी मेमोरी में सेव होते हैं, ठीक है, जब वो 5 नंबर्स एक्चुअली मेरी मेमोरी में सेव होते हैं, वो जस्ट yeah, next slide. Alright, right. When I'm talking about algorithm, this is the first term. Okay, in this diagram you can see that there is a first term called the algorithm. कि जब भी आपको किसी टास्क को परफॉर्म करना है, you should represent those tasks in a step by step manner, right? जैसे आपने उसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में उसको आपने लिख दिया, डेफिनेटली वो डेटा है, राइट, डेफिनेटली वो डेटा है। अगर वो डेटा है तो हमारी मेमोरी में सबसे पहले डेटा सेव होगा, देन हम उस पर प्रोसेसिंग इंस्टॉल करते हैं, देन हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं, राइट, इन अ नॉर्मल लाइफ एज वेल इन अ कंप्यूटर वर्क। सबसे पहले अगर मैंने डेटा लिया, डेटा को मैंने इंसर्ट कराया, तो मेरी मेमोरी में सबसे पहले वो डेटा सेव होता है, राइट। अब जब हमारी मेमोरी में वो डेटा सेव होता है तो वो किस फॉर्मेट में सेव होगा, ओके। हमारी जो मैंने डेटा को इंसर्ट कराया है, जैसे मैंने 1 + 2 + 3 ये मैंने नंबर्स लिए हैं, ये नंबर्स मेरी मेमोरी में सेव हो रहे हैं, तो ये जो नंबर्स है वो मेरी मेमोरी में कैसे सेव होंगे, ये कौन बताएगा, ये बताते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर मीन्स कि हमने जो डेटा को एंटर कराया है वो किस फॉर्मेट में सेव होंगे, वो कैसे स्ट्रक्चर होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट, कैसे वो काम करेंगे हमारी मेमोरी में, वो कहलाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 4 5, अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, दीज आर द इंटीजर नंबर्स, राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 2 3 4 5, दीज आर इंटीजर नंबर। तो अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये किस टाइप का डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर मीन्स कि कैसे इस टाइप जो आप डेटा को इंसर्ट करा रहे हो, जो भी आप डेटा ले रहे हो, उस पर आप कैसे कैसे आप उसको मेमोरी में सेव करोगे, आप कैसे उसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, राइट, कैसे आप उसको मेमोरी में सेव करते हो, कैसे आप उस पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, उसके लिए आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, अगर मैं ये बोल दूँ, जैसे मैंने कहा कि मुझे 5 नंबर्स को ऐड करना था, अगर मुझे 5 नंबर्स को ऐड करना है तो मैं ये बोलूँगी कि
1 2 3 4 5 दीज आर माई 5 नंबर्स. ओके, दीज आर माई 5 नंबर्स. और मैंने कहा अगर मैं ये बता दूँ मेमोरी को कि दीज आर द 5 नंबर्स और ये जो है वो सब इंटीजर टाइप के हैं, राइट. अगर ये बोल दूँ कि ये 5 नंबर्स हैं और ये 5 नंबर्स फिर इंटीजर टाइप के हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने डेटा को रिप्रेजेंट किया कि मेरा डेटा जो है वो इंटीजर टाइप का है. अगर मैं अपने नाम को सेव करना चाहूँ जसप्रीत, तो मैं बोलूँगी कि ये डेटा है, ये डेटा अल्फ़ाबेट टाइप का है, ये डेटा कैरेक्टर टाइप का है. ठीक है. दीज आर थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर. तो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर डेटा इन योर मेमोरी. ओके, कैसे आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो अपनी मेमोरी में, कैसे आप बताते हो मेमोरी को कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है, ये आपका फ्लोट टाइप का डेटा है, बिकॉज 1.0 2.0 दीज आर फ्लोटिंग नंबर्स. ये फ्लोट टाइप का डेटा है, ये अल्फ़ाबेट टाइप का डेटा है, क्योंकि जिस टाइप का डेटा होगा वो वैसे ही प्रोसेसिंग फॉर्म करेगा, राइट. क्योंकि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं ह्यूमन ब्रेन की बात करूँ, नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन की बात करूँ, तो अगर कोई बोलता है कि आई एम अ जसप्रीत, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ह्यूमन में एक प्रोसेसिंग है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है. और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1+2, हमारे ब्रेन में डेफिनेटली एक प्रोसेसिंग है जिसको हम बोलते हैं कि ये न्यूमेरिक है, ये न्यूमेरिक डेटा है, राइट. हमारा माइंड भी ऐसे ही ऑपरेट हो रहा है, उसको पता चल रहा है जब आप उसको एंटर कर रहे हैं डेटा को, उसको पता चल रहा है कि ये किस टाइप का डेटा है. फर्स्टली दे रिकग्नाइज ये किस टाइप का डेटा है, उस टाइप के डेटा को मुझे कैसे सेव करना है, देन हम प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं. Similarly, in a computer world as well, data structure is mainly useful for how you want to save your data, how you want to represent your data in your memory. Those are called as your data structure. डेटा को कैसे स्ट्रक्ट करना है, क्योंकि डेटा को सबसे पहले प्रेजेंट करोगे मेमोरी में, देन हम उस पर प्रोसेसिंग फॉर्म कर सकते हैं, राइट. एंड देन अ फाइनल यूनिट जो हमें पढ़नी है, दैट्स कॉल्ड एक्चुअल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटा की actually में if I'm talking about all things are related to data in a human life as well as in a computer world, all things are related to a data, right. डेटा को सेव करना है, डेटा को प्रोसेस करना है, यही ह्यूमन लाइफ में, यही कंप्यूटर वर्ल्ड में. तो इतना सारा डेटा है, तो डेटा को आप मैनेज कैसे करोगे, राइट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमारा ह्यूमन ब्रेन भी है, ह्यूमन ब्रेन भी मैं कहूँगी सब चीज़ों को याद नहीं रख सकता. ओके, हम भी सब चीज़ों को याद नहीं रख सकते. डेफिनेटली हम क्या करते हैं, अगर मुझे कुछ चीज़ याद नहीं रहेगी तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी नोटबुक में लिख लेती हूँ या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में टाइमर लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है ह्यूमन ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम हर चीज़ को याद नहीं रख सकते. तो इट मीन्स डैट कि जितने भी मुझे टास्क को फॉर्म करना होता है डेली डे टू डे लाइफ में, जैसे मैं कहूँ कि मुझे सुबह उठना है, देन मुझे कॉलेज जाना है, देन मुझे ये लेक्चर लेना है, तो दिस ऑल आर द डेटा, राइट. दिस ऑल आर डेटा. और इस डेटा को मुझे इजीली मैनेजमेंट वे में सेव करना होगा अपनी मेमोरी में, सो डैट कि मुझे हर चीज़ राइट टाइम पे याद आ सके, राइट. क्योंकि ऑब्वियसली मेरी मेमोरी में भी कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं, वो हर चीज़ को याद नहीं रख सकते. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि हम ये चीज़ भूल सकते हैं तो हम उसको राइट अप कर लेते हैं, हम लिखने की कोशिश करते हैं, नोटबुक में सेव कर लेंगे, मेल पे सेव कर लेंगे, हम अल्टरनेट वेज निकालते हैं, सो डैट कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा याद रख सकें हम, राइट. इन अ सिमिलर वे कंप्यूटर में डेफिनेटली, ये तो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की बात होगी, बट हम कंप्यूटर वर्ड की बात करें तो उसके पास भी बहुत सारा डेटा है. आपके मोबाइल फ़ोन में इतनी सारी एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, ऑलराइट. तो कैसे वो मैनेज करेगा इतनी सारी एप्लीकेशंस का डेटा, कैसे उसे पता चलेगा कि ये व्हाट्सएप का डेटा है और ये व्हाट्सएप पे ही रिवर्ट बैक करना है, कैसे उसे पता चलेगा कि ये कैलकुलेटर का डेटा है, कैलकुलेटर पे रिवर्ट बैक करना है. और उसके पास लिमिटेड मेमोरी है, हमारे पास 1 GB रैम ही है, हमारे पास 4 GB रैम ही है, हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है. तो उस लिमिटेड मेमोरी में कैसे हम उस डेटा को मैनेज करेंगे, ओके. दैट एक्चुअली कॉल्ड द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपकी थर्ड यूनिट है. डेटा को मैनेज कैसे करें, बिकॉज वी हैव अ लॉट्स ऑफ डेटा, राइट. हम डेटा को मैनेज कैसे करते हैं और यूजफुल डेटा कैसे निकालें, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो दैट्स माई लाइफ, एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में उसकी पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, राइट. दोनों ही डेटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माई पर्सनल एज वेल एज माई प्रोफेशनल. लेकिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने पर्सनल डेटा को कभी यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज मेरी प्रोफेशनल लाइफ में माई पर्सनल डेटा इज़ अ यूजलेस, राइट. और इन माई पर्सनल लाइफ माई प्रोफेशनल डेटा इज़ यूजलेस. डेफिनेटली यू हैव अ डेटा, मेरे पास भी डेटा है, बट किस सिचुएशन में कौन सा डेटा अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है, मैनेज करना है, यू शुड नो अबाउट दिस थिंग, ओके. तभी आपका जो इफ हम टॉकिंग अबाउट इन ह्यूमन लाइफ तभी आपकी अप्रोप्रिएटली आपकी चलती है, एंड आई वांट टू से दैट कि तभी आप अप्रोप्रिएटली मैनेज कर पाते हो, राइट. क्योंकि डेफिनेटली एक ह्यूमन लाइफ में आप अपने जॉब भी करोगे, आप स्टूडेंट लाइफ भी जियोगे, अपनी फैमिली लाइफ भी जियोगे. तो हाउ यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स आर डेटा, हाउ यू मैनेज ऑल द डेटा,
Similarly, when I'm talking about computer world, in computer world you have a lots of data, right? How you manage all these things of data? जैसे अगर मैं बोलूँ कि if I'm talking about कि आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारा डेटा हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी। बीए के स्टूडेंट्स भी है, एमटेक के स्टूडेंट्स भी है, फैकल्टी भी है, सबका डेटा है। लेकिन अगर मुझे केवल आपकी फैकल्टी का ही डेटा चाहिए तो बाकी रेस्ट डेटा इज यूजलेस फॉर मी राइट नाउ। तो मैं उसको यूज़ क्यों करूँ, मैं उसको रिट्रीव क्यों करूँ, इनफैक्ट मैं बोलूँगी मैं उसको इंटरनेट से डाउनलोड ही क्यों करूँ, राइट? तो दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ डेटा। कैसे मैनेज करोगे डेटा को? आपके पास डेटा तो है, आप कैसे मैनेज करते हो उस डेटा को? So these are actually third unit. Actually, why I'm talking about all this thing? Actually, today's lecture is actually talk about the introductory lecture, right? I just want to relate to all of the unit. जितने भी आपके units है मैं उसको relate करना चाह रही थी because you should know about it. Why we have learned all these things? कैसे ये चार यूनिट आपस में रिलेट करती हैं और टॉपिक क्या है, आपके सब्जेक्ट का जो नाम है वो टाइटल जो है वो इस टाइटल में कैसे फिट बैठ रही हैं, राइट? बिकॉज मैं एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस, इट्स ऑल अबाउट द डेटा, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेसिंग, राइट? तो वी शुड नो अबाउट दैट कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे एप्लीकेशन सेव हो रही है, कैसे डेटा स्ट्रक्चर, कैसे हमारी मेमोरी में डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। डेफिनेटली देयर इज अ वन क्वेश्चन एज वेल नेटवर्क एज वेल, बट नेटवर्क आपके सिलेबस में नहीं है। तो नेटवर्क नेटवर्क में भी आपका डेटा ही है हर जगह। इनफैक्ट मैं बताऊँ मैं कंप्यूटर वर्ड इज अ डेटा। डेटा को आपको प्रोसेस करना है, डेटा को आपको सेव करना है, डेटा को आपको एक्सचेंज करना है। फॉर दैट दे आर वेरियस टेक्नोलॉजीज, दे आर वेरियस थिंग्स वी हैव डेवलप्ड, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, हमने डेटाबेस मैनेजमेंट किया हुआ है, हमने नेटवर्क मैनेजमेंट किया हुआ है, हमने सीपीयूज लगा के रखे हुए हैं, हमने कोडिंग लैंग्वेज बनाई है, राइट? These all things we have built up. We have built up all these things for managing only data. Okay. Alright, this is all about today's lecture. End out, guys. Just a sec. Yeah, guys, end out. No, ma'am. Alright, then I will take class by tomorrow, but एक्चुअली आई हैव अदर कमिटमेंट्स एज वेल। तो मैं 2 to 5 के बीच में ही क्लास लूँगी डेफिनेटली, बट आई विल लेट यू नो बाय टुमारो कि विच पर्टिकुलर टाइम आई विल वांट टू टेक द क्लास। ओके, बट बिटवीन 2 to 5, डेफिनेटली बिटवीन 2 to 5 ही होगा। ऑलराइट, Okay, ma'am. Okay. ऑलराइट, या थैंक यू क्लास। Okay, thank you, ma'am. थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू ऑल।